Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Today we will learn Unit 2 Real and Complex Numbers. Topic 2.3 Radicals and Radicands. And we will going to solve exercise number 2.3. Here, concept of radicals and radicands. Students, what do you mean by the radicals and radicands? If n is a positive integer greater than 1, आपके पास n कोई भी एक positive integer है which is greater than 1, like 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास है, and a is a real number और a आपके पास कोई भी एक real number है, then any real number x such that x raised to power n will be equal to a is called nth root of a, and in symbol it is written as, like, the symbolic form of this is x is equal to nth root of a or x is equal to a raised to power 1 over n. Like students, चाहे आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में, चाहे आपके पास ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, these are the same things. Students, in the radical nth root of a, the symbol square root, like this root is known as the radical sign. n is called the index, like ये जो n है आपके पास ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा. और स्टूडेंट्स, ये जो a है जो आपके पास रेडिकल साइन के अंडर है, इट इज नोन एज रेडिकेंट और बेस. नाउ स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास सिंपल रेडिकल साइन में कोई बेस लिखी हुई है, या फिर इंडेक्स में 2 राइट है और आपके पास बेस है, या फिर आपके पास बेस a की पावर 1 over 2 है, तो these are the same things. Now students, difference between radical form and exponential form. In radical form, radical sign is used. For example, x is equal to nth root of a is a radical form. Here students, cube root of x and fifth root of x square are the example of radical form. Like ये भी आपके पास इसमें भी radical sign involve है, इसमें भी radical sign involve है, यहाँ पर भी आपके पास radical sign involve है, तो it means that it is a radical form. In exponential form, exponential is used in the place of radicals. Like students, अब exponential form में आपके पास radical sign जो होता है वो exponent के साथ क्या हो जाता है, replace हो जाता है. Here, for example, x is equal to a raised to power 1 over n. यहाँ पे आपके पास क्या राइट था, nth root of a. So students, यहाँ पर आपके पास क्या राइट है, a raised to power 1 over n is exponential form. Here student, x raised to power 3 over 2 and z raised to power 2 over 7 are also the examples of exponential form. Now students, properties of radicals. Here are some properties of radical. Let a and b belonging to real numbers are the elements of real number and m and b positive integers. Then here are the properties of radical. Number 1, अगर आपके पास इंडेक्स n है और आपके पास रेडिकल में, बेस में, रेडिकेंड में 2 रियल नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो आप इंडेक्स को, लाइक रेडिकल को, a के साथ सेपरेट और b के साथ सेपरेट राइट कर सकते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं और वो रेडिकल में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप न्यूमरेटर को इंडेक्स के साथ सेपरेट राइट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को इंडेक्स के साथ सेपरेट राइट कर सकते हैं. इन थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, हेयर आपके पास अब 2 रेडिकल साइन इन्वॉल्व हैं, तो आप एक रेडिकल साइन को इलिमिनेट करके दोनों के इंडेक्स को मल्टीप्लाई करके, लाइक nm, और एक ही रेडिकल साइन में आप इसकी बेस को राइट कर सकते हैं. हेयर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रेडिकेंड की पावर कोई भी पावर है, ठीक है, रेडिकेंड का कोई भी एक्सपोनेंट है, तो स्टूडेंट्स ये आप इसकी रेडिकल की होल की पावर लिख सकते हैं, होल एक्सपोनेंट उसको राइट कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इन फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इंडेक्स और रेडिकेंड की पावर अगर सेम हो जाएंगे तो इट विल बी इक्वल टू बेस. Now students, we are going to start exercise number 2.3. Question number 1. Write each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. Students, आपके पास अब इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स रेडिकल एक्सप्रेशन में राइट होंगे, लाइक
जिनमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व होगा उसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में होंगे उनको आपने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है विदाउट सिंप्लीफाइंग दैम. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ -64. हियर स्टूडेंट -64 इज द बेस, और आपके पास इंडेक्स में क्या रिटर्न है 3. सो आप जब इंडेक्स को कन्वर्ट करेंगे पावर में, एक्सपोनेंट में, सो इट विल बी -64 raised to power 1/3. Now students, here is part number 2 raised to power 2/3. It is in exponential notation, so I am going to convert in the radical notation. So students, आपके पास यहाँ पर क्या है, नीचे 3 है, इसका मतलब पावर में नीचे अगर 3 है तो ये आपके इंडेक्स में आएगा, और 2 raised to power 2 ये आपकी क्या होगी, बेस होगी. So student, it will be equal to cube root of 2 square. Now students, here it's part number 3, -7 raised to power 1/3. स्टूडेंट्स, आपके पास 1/3 है, इसका मतलब 3 किस में रिटर्न है, आपके पास पावर के डिनोमिनेटर में है, तो ये आपका क्या होगा, इंडेक्स होगा. सो इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ -7. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इट्स पार्ट नंबर 4, y raised to power -2/3. स्टूडेंट्स, आपके पास बेस में क्या रिटर्न है 3, तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूब रूट होगा, और आपके पास बेस में क्या आएगा, y raised to power -1. Now students, we are going to solve the question number 2. Tell whether the following statements are true or false. Here students, the part number 1, 5 raised to power 1/5 is equal to square root of 5. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो, किसी भी रेडिकेंड का स्क्वायर रूट हो, तो स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या होती है 1/2, बट यहाँ पर पावर क्या राइट है 1/5, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ये जो बेस है 2, इसकी पावर में लाइक इसके एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में क्या है 3, इट मीन्स दैट ये इसका क्या होगा, इंडेक्स होगा, तो बाकी आपके पास क्या रह गया 2 स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, इन स्टेटमेंट नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपके पास क्या होता है 7 स्क्वायर, तो स्क्वायर जो होता है आपके पास रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर क्या रह गया, सिंपल 7, लेकिन यहाँ पे क्या रिटर्न है, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ x raised to power 27. लाइक अगर क्यूब रूट है x raised to power 27, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 1/3. जब 3 27 के साथ कैंसिल होगा तो x raised to power क्या रहेगा 9, बट यहाँ पर हमारे पास क्या रिटर्न है x क्यूब, सो इट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. Now student, question number 3, simplify the following radical expressions. Students, here we have its part number 1, cube root of -125. स्टूडेंट्स, जब आप 125 की फैक्टराइजेशन करेंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इट विल बी 5 raised to power 3, यानी 5 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम, सो -5 raised to power 3. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू राइट दिस रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन. यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स में 3 है, सो इट्स पावर विल बी 1/3. नाउ स्टूडेंट्स, पावर की पावर हो, अगर आपके पास पावर की पावर हो तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 के साथ कैंसल, तो इट विल बी इक्वल टू -5. इट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन. Here is 4th root of 32. स्टूडेंट्स, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 32 जो है आपके पास आएगा 2 raised to power 5. लाइक 2 कितने टाइम्स आएगा आपके पास 5 टाइम्स. बट लुक एट द इंडेक्स, इट्स इंडेक्स इज 4. सो स्टूडेंट्स, हम अपने 2 की पावर 5 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, राइट इज 2 raised to power 4 एंड 2 raised to power 1. लाइक मैंने 2 raised to power 4 को सेपरेट कर लिया और 2 raised to power 1 को सेपरेट कर लिया. नाउ स्टूडेंट, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब मैंने अपनी ये बेस में ये जो 2 इंटीजर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे थे रियल नंबर्स, अब इनको मैंने क्या किया रेडिकल के साथ सेपरेट लिख लिया. नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द 5th लॉ, nth रूट ऑफ a raised to power n इज इक्वल टू a. इट मीन्स दैट जब आपके पास इंडेक्स और बेस की जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो जाए तो इट विल बी इक्वल टू इट्स बेस. तो इसका मतलब 4 के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2, और आपके पास ये 4th रूट ऑफ 2 एज इट इज ही आ जाएगा. इट इज योर आंसर.
नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।